students. So in the previous video we have done example number 4, 5 and 6. In this video we are going to start with example number 7. So let's just read it out. There are 40 students in class 10 of school of whom 25 are girls and 15 are boys. The class teacher has to select one student as a class representative. She writes the name of each student on a separate card. The cards being identical, then she puts cards in a bag and stirs them thoroughly. She then draws one card from the bag. What is the probability that the name written on the card is the name of a girl or a boy? ठीक है. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. दिस इज क्वाइट इजी. यहाँ पे क्या करना है, सिंपली हमें फेवरेबल आउटकम से लिखने हैं एंड डिवाइड करना है टोटल आउटकम से. ठीक है. सो लेट्स जस्ट राइट देयर आर 40 स्टूडेंट्स and only one name card has to be chosen. तो ठीक है. सो फर्स्ट इज let G be the event card with name of a girl. ओके. सो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, गर्ल्स कितनी है, देयर आर 25 गर्ल्स. सो फेवरेबल आउटकम्स is 25. ठीक है. सो therefore probability of G is equals to favorable outcome divided by total outcome. So 25 divided by 40. Okay, 25 divided by 40. So 5 5s are 25, 8 5s are 40. So this is 5 by 8. Okay. Now the second one, that the name will be boy. Okay. So let B be the event card with name of a boy. Okay. So favorable outcomes कितने हो जाएंगे, there are 15 boys favorable outcomes is therefore probability of P is equals to favorable outcome divided by total outcome. So this is 15 divided by 40. So this is 3 by 8. Okay. So दोनों का एडिशन मैंने बताया था, कोई भी इवेंट होती है उन सब का एडिशन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. सो दिस इज 5 by 8 प्लस 3 by 8 करके देख लेना, आंसर 1 आएगा. ठीक है. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट विच इज एग्जाम्पल नंबर 8. सो लेट्स जस्ट रीड इट आउट. क्या है एग्जाम्पल नंबर 8. A box contains 3 blue, 2 white and 4 red marbles. If a marble is drawn at a random from the box, what is the probability that it will be white, blue or red? Okay, so here the marble is drawn at random is a short way of saying that all the marbles are equally likely to be drawn. Therefore the number of possible outcome कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर्स कितने हैं मार्बल के, 3 + 2 5, 5 + 4 9. सो टोटल मार्बल्स कितने हैं, 9. ओके. सो लेट्स जस्ट डिनोट. पहले हम कर लेते हैं नंबर ऑफ total outcomes
is equals to 3 plus 2 plus 4 is equals to 9. अभी देखो ये इक्वली लाइकली कैसे हुआ, बिकॉज यहाँ पे हर एक का वैल्यू डिफरेंट है. ठीक है, मतलब कोई एकदम कम नहीं है और कोई एकदम ज़्यादा नहीं है, सब एक लेवल पे है. मतलब किसी में एक कम है तो किसी में एक ज़्यादा है. ठीक है, सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बहुत ही कम है और दूसरा बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो ये इक्वली लाइकली हम बोल सकते हैं. नाउ लेट W denote the event the marble is white. The marble is white. Okay, let B denote the event the marble is blue. And let R denote the event the marble is red. ओके, सो फर्स्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी वाइट के लिए. सो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? हाउ मैनी मार्बल्स ऑफ वाइट आर देयर? देयर आर 2 मार्बल्स. सो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? इज 2. Therefore, probability of W is equals to 2 by 9. Okay. For the second one, that blue favorable outcome कितने हो जाएंगे? Favorable outcome is is 3. Therefore, P of B is equals to 3 by 9. And the last, that is third one, favorable outcome is 4. Therefore, probability of R is equals to 4 by 9. Okay. Now move on to next, which is example number 9. Harpreet tosses 2 different coins simultaneously. So what is the probability that she gets at least one head? Okay. So यहाँ पे देखो हरप्रीत ने क्या किया है, कॉइन को 2 बार टॉस किया है. ओके, 2 बार टॉस किया मतलब एक बार का हेड्स टेल्स, दूसरी बार का हेड टेल्स. ठीक है, सो यहाँ पे पहले ऐसे पैर बनेगी, हेड के साथ हेड के साथ टेल आ सकता है. ठीक है, मतलब फर्स्ट कॉइन में हेड आया, दूसरे कॉइन में भी हेड आया. फर्स्ट कॉइन में हेड आया, दूसरे कॉइन में टेल आया. फिर फर्स्ट कॉइन में टेल आया, दूसरे कॉइन में हेड आया, एंड टेल टेल. ठीक है, सो यहाँ पे पैर्स कैसे बनेगी? पैर्स व्हेन 2 कॉइन्स tosses together, क्या हो जाएगा? पैर, एज आई सेड, हेड हेड, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, हेड्स विथ हेड, हेड विथ टेल्स, टेल्स विथ हेड, एंड टेल्स विथ टेल्स. ओके, सो यहाँ पे हमें किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन हैज एटलीस्ट 1 हेड, मतलब किसी भी एक कॉइन पे एक हेड तो होना ही चाहिए. तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3. सो लेट E बी द इवेंट at least 1 head. Okay, so therefore favorable outcome
for event E is 3, मतलब एटलीस्ट 1, मतलब 1 से ज़्यादा हो तो चलेगा पर एक तो होना ही चाहिए. Therefore probability of E is equals to favorable outcome डिवाइड बाय टोटल आउटकम. कितना हो जाएगा 3/4. ठीक है, टोटल आउटकम मतलब कैसे है 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है, उसमें से फेवरेबल कितने हैं 3. अगर इसमें आपको बहुत सारे ट्विस्ट करके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एटलीस्ट 1 टेल. ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा. ओके, सो फिर आता है एटलीस्ट 2 हेड्स, तो वहां पे सिर्फ एक ही आएगा. एटलीस्ट 2 टेल्स मतलब ये एक ही आएगा. ठीक है, तो ऐसे करके आपको ट्विस्ट करके भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. ओके, नाउ मूव ऑन टू, देखो एग्जाम्पल नंबर 10 एंड 11. इट इज अ स्टार क्वेश्चन, तो उसको आपको सिर्फ एक बार देख सकते हो, बट एग्जामिनेशन पर्पज से वो आपको नहीं पूछे जाएंगे. ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट विच इज एग्जाम्पल नंबर 12. which says a cartoon consists of 100 shirts of which 88 are good. ठीक है, 8 have minor defects and 4 have major defects. ओके, सो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 100 शर्ट्स है उसके पास कार्टून में. ठीक है, उसमें से 88 are good one. ओके, 8 has minor defect and 4 में major defects है. ठीक है, सो जिमी अ ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर गुड. ठीक है, मतलब जो जिमी है वो सिर्फ गुड शर्ट्स को ही, मतलब उसका फेवरेबल कितना हो जाएगा सिर्फ 88. ओके, एंड सुजाता अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स विच हैव मेजर डिफेक्ट्स. ओके, सो मेजर डिफेक्ट वाले कितने हैं 4, मतलब वो गुड वाले भी ले लेगी और माइनर डिफेक्ट वाले भी ले लेगी. ठीक है, माइनर डिफेक्ट एंड गुड दोनों ले लेगी, सिर्फ वो क्या रिजेक्ट करेगी सिर्फ मेजर वाले को. ठीक है, तो 88 + 8 मतलब ये सारा हो जाएगा उसका फेवरेबल आउटकम. ओके, सो फर्स्ट है इट इज एक्सेप्टेबल बाय जिमी एंड सुजाता, दोनों के लिए ढूंढना है. ठीक है, सो लेट्स जस्ट राइट फर्स्ट the number of outcomes favorable to Jimmy is equals to 88, क्योंकि वो कितने सिर्फ जो गुड वंस है वही शर्ट्स लेगा. ठीक है, सो therefore P of shirt is acceptable to Jimmy. वो क्या हो जाएगा 88 डिवाइड बाय टोटल आउटकम दैट इज 100, दैट इज 0.88. ओके, नाउ सुजाता विल टेक, उसने क्या बोला वो सिर्फ उसी शर्ट को रिजेक्ट करेगी जिसमें मेजर डिफेक्ट्स है, मतलब ये निकल जाएंगे 4 वाले. सो द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू सुजाता is equals to 88 plus 8 which is 96. So P shirt is acceptable by to Sujata is equals to 96 divided by 100 which is 0.96. Okay, so we will just stop here. In the next video we are going to solve some another examples and start with the exercise 15.1. Till then, thank you.